समय बिता सकें। Sitting around the Word of God, hearing the still and small voice of God, it is a blessed thing. और दर्शक के वचन के चारों तरफ बैठना, उसकी मधुर आवाज को सुनना बड़ी आशीष की बात है। We all know for these days of special gatherings, the Lord has given us the theme verse from 2 Corinthians chapter 6 verse 17, be ye separate. और हम इस सब बात को जानते हैं, इस आयत को हमारी जो सभा की बुक आयत है 2 कुरिन्थियों 6:17 से, कि उनके बीच से निकल के अलग रहो। Yesterday we have seen that salvation is free, but separation is very costly. We have to pay a price. और हमने कल देखा था कि उद्धार तो मुफ्त है, पर अलगाव जो है इसके लिए ये बहुत कीमत है, इसकी चुकानी पड़ती है। Salvation gives us entrance to heaven, an admission to heaven. But what you are going to be in heaven, that will be decided by your separated life. हम उद्धार पाके स्वर्ग में प्रवेश तो कर सकते हैं, पर हम स्वर्ग में क्या होंगे, किस स्तर पर रहेंगे, ये अलगाव का जीवन उस पर निर्भर करता है। Yeah, tomorrow are you going to be a ruler, or are you going to be a ruler on many places? All these things will be decided how you live for the Lord in this world. हम इस संसार में कैसे रहते हैं, इस पे निर्भर होगा कि हम स्वर्ग में के राजा कितनी जगह का राज करेंगे, कितनी चीजों पे राज करेंगे, ये उस बात पर निर्भर करेगा। Separation is the principle of God right from Genesis first chapter. और उत्पत्ति के पहले अध्याय से हमने देखा था किस तरह से परमेश्वर का ये नियम है अलगाव का। We have seen already yesterday. हमने कल देख लिया था इस बात को। On the very first day, the Lord created the light, and immediately the thing what He has done is He separated the light from darkness. कि हमने देखा था परमेश्वर ने जैसी उजाले को बनाया, और जो पहला काम उसने उसके बाद किया, अंधकार से ज्योति को अलग कर दिया। So the moment when you are born again, the first step to go forward is separation. तो जब हमारा उद्धार जाता है तो पहला कदम जो हमें आगे बढ़ाना है वो अलगाव के जीवन का है। And even in verse 7 of first chapter we have seen God has separated the upper waters and the lower waters. और 7वीं आयत में भी हमने देखा था पहले अध्याय कि उसने आकाश के जल को पृथ्वी के जल से अलग किया। Something of heavenly, something of earthly. God never wants those things to be together. जो स्वर्ग की चीजें हैं और जो पृथ्वी की चीजें हैं, परमेश्वर नहीं चाहता कि वो एक साथ रहें। God separated the upper waters and the lower waters. परमेश्वर ने आकाश के जल को और पृथ्वी के जल को अलग किया। And also we have seen from the life of Abraham a complete separation, a sevenfold separation. और फिर हमने अब्राहम के जीवन से देखा था कि कैसे 7 तरीके से वो अपने अलगाव का जीवन उसने जिया। Come on, you tell me. कौन-कौन बताएगा? हाँ। 7 अलगाव क्या कहते? एक बताओ। हाँ, in a serial order. हाँ। अपने देश से, हाँ। कुटुंब से। For me it is अपने कुटुंबियों से, from his kindred. अपने कुटुंबियों से, अपने Thirdly from his family. और फिर अपने पिता के घर से। So threefold separation in Genesis 12:1. और उत्पत्ति 12:1 में हम देखते हैं 3 अलगाव हमने देखे थे। Very very difficult it is. और बड़ा मुश्किल है ऐसा करना। Leaving our native place is the most difficult thing. अपने निवास स्थान को छोड़ के जाना ये बड़ा मुश्किल होता है। In Telugu and in Hindi, one word is there, Janani, then Janmabhoomi, isn't it? जननी और जन्मभूमि। Very difficult to be separated from our Janani, that is Mata, that is mother, and secondly, Janmabhoomi, that is native place. अपनी माता जो हमारी जननी है उससे अलग होना, और दूसरा अपनी जहाँ हम जन्म जिस जगह हमारा जन्म हो उस जगह से अलग होना, दोनों बड़ा कठिन होता है। I already told I am 65. भाई ने बताया आपको कल भी कि 65 साल के हो गए हैं। My mother is 85. और भाई की माता जो है 85 साल की है। By God's grace, she is still alive. और उनके अनुग्रह से अभी जीवित है। She is cooking her own food. अपना खाना खुद बनाती है। And she is in the village. और गांव में रहती है। Now and then when I go to meetings here towards that places, I used to visit my mother. और जब भी भाई उस तरफ जाते हैं अपनी माँ को जरूर मिल के आते हैं। Now I am 65. I am having 4 grandchildren.
और भाई 65 साल के हैं, खुद के 4 पोता पोती हैं। But now when I visit my mother, पर जब अपनी माँ से मिलने जाते हैं, I will be with her maybe for 2 hours or 3 hours. 2-3 घंटे उनके साथ रहते हैं। How are you? कैसी हो? How are you doing? कैसे Is there any lack for you? कोई कमी तो नहीं है? So all these things after talking. तो ये सब बातें करने के बाद Okay, then I will go to Hyderabad. फिर हैदराबाद वापस आते हैं। वापस आने के पहले वापस आने से पहले टाटा बोलते ना, again रोना शुरू कर। और फिर से रोना शुरू करती है। 85. 85 साल की हो I गई am है, 65. भाई 65 साल के हैं। Why? क्यों? The relation between the mother and the child is so near and so dear. बच्चे में और माँ के जो रिश्ता है वो बहुत नजदीकी का, बहुत प्रेम का होता है। Very difficult to leave our mother. अपनी माँ को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता At है। the same time, उसके साथ साथ after Janani, the next thing is Janambhumi. और माँ के बाद, जननी के बाद दूसरा जो मुश्किल है, जिसे So हम लोग जन्मभूमि, leaving our native place is very difficult. अपने जहाँ हमारा जन्म हो उस जगह को छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल Suppose होता है। if anybody from some village from Najafgarh has gone to America, मान लीजिए नजफगढ़ से कोई आदमी अमेरिका चला गया and after 1 year if some other person goes to America from Najafgarh, और फिर कोई सालों के बाद नजफगढ़ से कोई आदमी अमेरिका दूसरा जाता है, immediately what that fellow will ask, वो आदमी से क्या पूछेगा? this is Najafgarh. नजफगढ़ कैसा है? हमारा बाजू वाले को ये काला कुत्ता था कैसा है? So everything they will ask. वो सब पूछेंगे उस जगह के बारे में। क्यों? Our affections are associated with our native place, जहाँ हमारा जन्म हो उस जगह से हमारा जो जुड़ाव बड़ा बना रहता है। especially when it is a village. खासकर जब कोई गांव की As I बात हो, told you, in a town, in a city like this, there will not be that much relation between each other. जैसे हमने कल बताया था कि शहरों में तो ये भी नहीं जानते पड़ोस में कौन है और कोई ज्यादा रिश्ता We नहीं do होता। not know who is staying in the next apartment. बगल वाले घर में कौन रह रहा है नहीं पता होता। But in the village, it is not like that. और गांव में ऐसा नहीं होता। It is a corporate living. वो सब बड़े मिलजुल के रहते हैं। Everybody knows what curry is there in the other's house. सबको पता है बगल वाले घर में आज क्या बन रहा है। So that is the village life. ये गांव में ऐसा जीवन होता Very है। difficult to leave our native place. अपने निवास स्थान मूल भूमि को छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल So होता है। Abraham's sacrifice is a great sacrifice. तो अब्राहम का जो बलिदान है वो बड़ा बलिदान है। In those days there are no telephones, there are no buses, nothing is there. Even in those days, leaving his native place and going to a far off place which is not known to him, it is very difficult. और उस समय फोन नहीं थे, गाड़ियां नहीं होती थी, फिर भी ऐसे समय में अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना जिसको नहीं जानता बड़ा मुश्किल था। At least he cannot give the address also. I will be there in that village, please come, because he doesn't know where he was heading to. वो जाते समय ये भी नहीं पर्ची दे के जा सकता कि मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, ये पता है क्योंकि उसको pता ही नहीं जा कहाँ रहा है। So the first is from his country, secondly from his kindred, third is from his father's house, वो अपने देश से, कुटुंबियों से, अपने पिता के घर से अलग हो गया। and fourthly, चौथी बात, in verse 13, yes, from Lord. दूध से अलग हो He गया, separated himself from Lord. दूध से अलग हो गया। And fifthly, in 14th chapter, और 14वें अध्याय में फिर पांचवी बात क्या है? from the riches of Sodom. सदोम की धन संपत्ति से अलग हो गया। And sixthly, छठी बात, from the fruit of the flesh, that is from Ishmael in chapter 21. और शरीर के जो फल जो इश्माइल उसका पुत्र हुआ था, जो 21वें अध्याय में देखा, By, उससे अलग हो गया। by using his fleshly strength, because of his impatience, because of the wrong suggestion given by Sarah, he has given birth to Ishmael. और उसने अपने शरीर पे भरोसा करके अपनी और अपनी पत्नी की गलत सलाह को मान के अधीरता दिखा के ये पुत्र को जन्म दिया। And one day, instead of giving joy, that child has given tears. और ये बच्चा जो था उसको खुशी देने की जगह उसने एक दिन उसको आंसू दिए। So whatever you do, whatever you fruit you get because of your fleshly endeavors, one day you have to leave. तो अपने शरीर के बल से जो भी हम फल प्राप्त करते हैं वो उसको हमें एक दिन छोड़ना पड़ेगा। So in the ministry also we have to see very carefully, is God leading me or my personal emotions are leading me? तो प्रभु की सेवकाई में भी हमें देखना है कि क्या मैं अपनी खुद की सामर्थ्य से कर रहा हूँ या परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहे हैं। Is God leading me or not? परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहे हैं कि नहीं। So whatever you, reap because of the fleshly energy, one day you have to leave it. Instead of giving you joy, it will give you sorrow. तो अपने शरीर के बल से हम जो भी फल प्राप्त करेंगे उसको हमें एक दिन छोड़ना पड़ेगा और छोड़ते समय वो हमें खुशी नहीं देगी, आंसू ही देगी। And seventhly and finally,
और सातवीं और आखिरी बात जिससे वो अलग हुआ, Abraham was separated from his son Isaac, that is the spiritual gift. और अब्राहम को अपने पुत्र जो इसहाक जो कि एक आत्मिक फल था उससे भी उसको अलग होना पड़ा। God has put a test before him. परमेश्वर ने उसके सामने एक परीक्षा रखी। Are you loving the gift or are you loving the giver? तू दान जो तेरे को मिला उससे ज्यादा प्रेम करता है या दान देने वाले को प्रेम If करता you है? are not loving the gift, offer it to me. और अगर तू उस दान से प्रेम नहीं करता तो उस दान को मेरे लिए बलिदान कर दे। In that most difficult test also, Abraham passed. और उस कठिन परीक्षा में भी अब्राहम सफल हुआ। That's why Abraham became the greatest man ever lived on the face of the earth, next to Lord Jesus. इसलिए अब्राहम इस संसार में जितने मनुष्य है प्रभु यीशु मसीह के बाद दूसरे स्थान पे सबसे मशहूर व्यक्ति अब्राहम है। Today Abraham, even after 4,000 years of his life, he is the most famous man in this world. अपने जीवन के 4000 साल के बाद भी आज भी संसार में सबसे मशहूर व्यक्ति अब्राहम है। And we have seen some of the principles of separation from the Old Testament. और हमने पुराने नियम से कुछ अलगाव के सिद्धांतों को देखा था। We have seen already from Numbers chapter 6, from verses 1 to 9. और गिनती छठा अध्याय उसकी 1 से 9वीं आयत में हमने देखा था। There are 4 principles of separation. अलगाव के 4 सिद्धांत हमने देखे थे। The Lord has laid down those principles and conveyed to the people of Israel through the mouth of Moses. परमेश्वर ने ये अलगाव सिद्धांत बनाए और मूसा के द्वारा से लोगों तक पहुंचाए। What are those 4 वो principles? 4 सिद्धांत क्या है? We started the first one. I am very sure we cannot complete the first one during these 4 days. और हमने पहले सिद्धांत को शुरुआत की थी और हमें पक्का है कि 4 दिन ये जो बचे हैं इसमें भी हम पहला सिद्धांत पूरा नहीं कर पाएंगे। Forget about the remaining 3. बाकी 3 की तो बात छोड़ At least दीजिए। the first one we are going to meditate today and tomorrow also. आज पहले सिद्धांत पे आज और कल पूरा ध्यान से मनन करेंगे। So what are the 4 principles of separation in Numbers? गिनती में जो 4 सिद्धांत अलग होने के बताए वो कौन से हैं? Yeah, number 1. Yeah, we should not drink wine. दाखरस दाख मधु से दूर रहना है। Though it is good and very good juice, but a Nazarite, though every Israelite is drinking, he should not drink. दाखरस जो है वो अच्छी चीज है और सारे इजराइल के लोग पी रहे हैं पर आप एक नाजरी होने के नाते आप उससे अलग रहना। And the second principle in Numbers 6:5, नंबर गिनती छठा अध्याय उसकी 5वीं आयत और दूसरा सिद्धांत क्या है? he should grow the locks of his hair. उसको अपने सर के बाल बड़े करने हैं। No razor should come upon his head. उसके सर पे कोई उसका नहीं आना He चाहिए। should not cut his hair. उसको अपने बालों को नहीं काटना। By seeing the person itself, we can tell that he is a Nazarite. उसको देख के ही बता सकते हैं ये नाजरी है Because they will be growing the locks of their hair. क्योंकि उसके लटे जो है बड़ी बड़ी होंगी। And now thirdly, और तीसरी बात Numbers chapter 6 verse 7. गिनती छठा अध्याय उसकी 7वीं आयत। What is the third principle? तीसरा प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है? मरे हुए He should not touch any dead body. किसी मरी हुई वस्तु को शरीर को नहीं छूना। However dear that person may be, suppose if the person is dead, you should not have any touch with that person. चाहे वो कितना भी प्रिय आपका संबंधी क्यों ना हो पर अगर वो मर गया आपको उसको छूना नहीं है। Maybe the dead body of the mother, even the father, even the brother or sister, you should not touch. चाहे माता पिता भाई बहन की देह क्यों ना हो आपको उसको नहीं छूना। These are all literal in the Old Testament, but in the New Testament, they are having their own spiritual applications. ये पुराने नियम में जो बताया गया था ये तो शारीरिक रूप से था पर इसका आत्मिक जो इसका वो है मतलब वो हम नए नियम में देखते हैं। So what is the fourth principle that is in Numbers 6 verse 9? और गिनती छठा अध्याय उसकी 9वीं आयत में हम जो चौथा सिद्धांत देखते What हैं। is the fourth principle? चौथा सिद्धांत क्या है? Yeah, the fourth principle is you are responsible for the death of your neighbor. आप अपने पड़ोसी की मृत्यु के जिम्मेदार हैं। Yeah, suppose if anybody suddenly dies who is sitting beside you, God will ask you why he died. अगर आप बैठे हैं आपके बगल वाला मर जाता है तो परमेश्वर आपसे पूछेगा ये क्यों मर गया। So these are the four principles in the Old Testament. तो ये 4 सिद्धांत हैं जो हम पुराने नियम में देखते Now we हैं। started seeing the first principle. हमने पहले सिद्धांत को देखना शुरू किया था। What is that? पहला क्या You था? should not drink wine. ये दाख मधु नहीं पीना। And we have seen wine is the most famous drink in those days. It was used as a starter in every function. और हमने देखा था दाख मधु जो है एक स्टार्टर शुरुआत जब भोज की शुरुआत होती थी सबसे पहले यही किया जाता और सबसे मशहूर चीज थी। And also we have seen the wine in the Bible speaks of
so many things. और हमने देखा था बाइबल में दाखरस का कितने बहुत सारे मतलब हैं। Yeah, it speaks of ये joy. आनंद को It बताता है, speaks of blood. ये लहू को It दिखाता है, speaks of satisfaction. संतुष्टि को दिखाता It है, speaks of love. प्रेम को दिखाता है, Fifthly, it speaks of health. और सेहत को दिखाता है, And also sixthly, it speaks of sufficiency. और भरपूरी को दिखाता है। And seventhly, we have seen, it speaks of the things that gladdeneth the heart of man. और ये ऐसी चीज जो कि मनुष्य की हृदय को आनंदित करती है। That is what we have seen in Psalm 104 verse 15. और भजन 104 उसकी 15वीं आयत में हमने पढ़ा था। We are not seeing all those things, the joy, the blood, the satisfaction, the love, the health and all the sufficiency. और ये सारी चीजें जो हैं, सेहत है, लहू है, प्रेम है, वो सब चीज, सब संतुष्टि है, आनंद है, इसको हम नहीं देख रहे हैं। Even in that also we are seeing only one thing. उन सब में भी हम एक बात को देख रहे हैं। What is that? उसको क्या The देख रहे हैं? things that gladdeneth the heart of man. वो बातें जो मनुष्य के हृदय को आनंदित करती Today हैं। when we see in the world, आज हम जब संसार में देखते हैं, so there are so many things that have come, which wants to gladden the heart of man. बहुत सारी चीजें हैं जो मनुष्य के हृदय को आनंदित करती हैं। Oh boy, see the TVs, टीवी को देखिए, and see your cell phone, अपने मोबाइल फोन को see देखिए, the internet, इंटरनेट को see देखिए, the cinema, सिनेमा को oh देखिए, see the fashion. फैशन को देखिए। So many things have come into this world बहुत सी चीजें संसार में आ गई हैं to gladden the heart of man. मनुष्य के हृदय को आनंदित करने के लिए। All the world they will tell lies. और सारे संसार में ये झूठ बोलते हैं। If you see the advertisement, अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखें, how many of you know about Charminar cigarettes? चार मीनार सिगरेट के बारे में कितनों को पता Many है? of you may be knowing Charminar, but Charminar cigarettes were there once upon a time. एक जमाना था जब चार मीनार सिगरेट हुआ करती थी। How many of you know? मालूम होगा, हाथ में नहीं उठाएंगे। नहीं झूठ नहीं बोलना। Because I was a smoker, I know. Once upon a time, not today. बहुत पहले भाई जब सिगरेट पीते थे तो उस जमाने की बात है, उस समय सिगरेट होती थी चार मीनार। Advertisement, what it will be there? और एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा होगा? Charminar पियो और संतृप्ति पाओ। चार मीनार पी के संतुष्टि पाओ। Is it true? क्या ऐसा हो सकता है? And at the bottom, what is written? और नीचे क्या लिखा होगा? Yeah, smoking is injurious to health. You will suffer from cancer. धूम्रपान पीने सेहत के लिए हानिकारक है, आपको कैंसर हो सकता है। And ऊपर क्या है? ऊपर क्या लिखा है? Charminar पियो। चार मीनार पियो, संतृप्ति whatever you call it. संतृप्ति पाओ। पाओ। नीचे नीचे लिखा सेहत खराब। if you Charminar पिए तो क्या होता? फ्री गिफ्ट है कैंसर। मुफ्त में दान मिलेगा। So all lies are there. तो ये सब झूठ वाली The बात है। world will tell this will give you satisfaction, that will give you satisfaction. और सारा संसार आपको बताएगा, ये आपको संतुष्टि देगा, इससे आपको बड़ा मजा आएगा। I don't know whether I have to tell this here or not. पता नहीं ये बात यहाँ बताने लायक है कि नहीं है। One day in one of the big hotels, एक बड़े होटल में and one person went there and booked 2 call girls. और उसने 2 वैश्याओं को उसने बुला लिया Whole day he was there with those girls, और 2 पूरे दिन उन औरतों के साथ था, and he have paid some money. पैसा भी दिया। And when he went to the bathroom, and those girls left the room, और जब वो बाथरूम में गया तो वो लड़कियां चली गईं and they pasted a small sentence on the door and they left. और एक पेपर पे कुछ लिख के दरवाजे पे चिपका के चली गईं। You have given us wonderful satisfaction and pocket full of money. और तुमने हमारे को संतुष्टि दी और जेब भर के पैसा दिया। We also want to give you something. हम भी तुझे कुछ देना चाहते हैं। Freely we are giving you AIDS. हम तुझे एड्स मुफ्त में दे रहे हैं। That fellow, yes, वो अपना सर पकड़ के बैठ गया। what are the things that are there in this world? इस संसार में जो भी चीजें हैं, इस चीज को याद रखें। They are so satisfying, but they will not give satisfaction. वो लगेगा कि बड़ा उससे संतुष्टि मिलेगी, पर वो आपको संतुष्टि नहीं देगी। But लेकिन what is our joy? हमारा काम क्या है? Yes, separated people, what is our joy? जो हम अलग किए हुए लोग हैं, हमारा आनंद किसमें है? God never wants His children to be sorrowful all the time. परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे हरदम दुख में बैठे रहे, शोक में Every रहे। father, every mother wants their children to be happy all the time. हर माँ बाप चाहता है उसका बच्चा हरदम खुशी रहे। Sometimes they won't eat, but they will make their children joyful. कई बार वो खुद नहीं खाएंगे पर अपने बच्चे को आनंदित करेंगे। Without eating, they will be sending money for their college fees. अपने खुद ना खा के उस बच्चे की फीस कॉलेज की भरते रहेंगे। But what
See, we all know God is more loving than the earthly parents. पर हमारा प्रभु जो है संसार के माँ बाप से ज्यादा He प्रेमी है। never wants us to be sorrowful. वो कभी नहीं चाहता कि हम उदास हैं। So when you want to lead a separated life, when you don't want the wine of this world, then what is your joy? तो आप एक अलगाव का जीवन जीना चाहते हैं और ये दाखरस आपको आनंद नहीं दे सकती, तो आपका आनंद किस चीज में है? Yeah, you have left the things of the world. आपने संसार की चीजों को छोड़ I'm a दिया। separated person. I don't want this thing and that thing or that thing. आप तो अलगाव वाले व्यक्ति, मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, फलानी चीज नहीं So the चाहिए। whole world is joyful because of them. I don't want them. I don't want to touch them. जबकि पूरा संसार उन चीजों से आनंद ले रहा है, पर हमें उसको नहीं छूना, नहीं उनके पास नहीं जाना। Then what is your joy? फिर हमारा आनंद है किसमें? Yesterday we have seen the first. We started seeing the first thing. और हमने पहली जो आनंद की बात उसको देखना शुरुआत की थी। Now you see the subject how big it is. अब ये देखिए विषय कितना बड़ा है। 4 principles are there. 4 सिद्धांत हैं। In the first principle, wine we are talking. और पहले सिद्धांत में जो दाखरस है उसके ऊपर बात कर In रहे the हैं। wine also, wine symbolizes 7 things, but we are seeing only one thing. और दाखरस भी जो 7 चीजों को दिखाती है उसमें से हम एक चीज को छेड़ रहे That हैं। is the things that are gladdening the heart वो of बातें man. जो मनुष्य के हृदय को आनंदित करती है। In that also, what are our joys? Again, I want to share with you 7 things. First thing we are seeing. और उन अपने हमें जो आनंद देती है वो भी 7 बातें हैं जो है, उसमें से एक बात को हम आज छेड़ रहे So ये special meetings कम से कम 2 महीने लगते हैं। ये 2 महीने चलनी चाहिए इस तरह से। Then only we can think of the separation. तब हम जाके अलगाव की बात So what is our joy as the children of God? तो हम जो परमेश्वर की संतान है, हमारा आनंद किसमें है? And we have seen yesterday, delight thyself also in the Lord. Psalm 37 verse 4. भजन 37:4 में हमने पढ़ा था, अपने यहोवा में आनंदित रहे। The God who gives me joy. Psalm 43 verse 4. भजन 43:4, ये यहोवा मुझे आनंद देता है। Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Philippians chapter 4 verse 4. फिलिप्पियों 4:4, आनंदित रहो यहोवा में, और मैं फिर से कहता हूँ यहोवा में आनंदित रहो। So shall we read that verse? इस बात को पढ़ लेंगे। Numbers chapter 6 verse 3. गिनतियों 6 अध्याय उसकी 3री आयत, All of us. सब मिलके एक साथ पढ़ेंगे। तब वह दाखमधु आदि मदिरा से अलग रहे, वे ना दाखमधु ना मदिरा ना सिरका पिए और ना दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख ना खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। So what is our joy? तो हमारा आनंद किसमें है? The first thing we have seen from Psalm 37:4, God is our joy. और भजन 37:4 में हमने देखा, यह प्रभु हमारा आनंद है। Such a great creator. He came down to become your savior. That is our joy. इतना महान प्रभु संसार में मनुष्य रूप धारण करके हमारा उद्धार करने के लिए आया, ये हमारा आनंद है। Leaving many things in the whole world, great things are there, but God has loved you. God has chosen you. That is our joy. और संसार में इतनी बड़ी बड़ी चीजें छोड़ के प्रभु ने हमें चुना, हमसे प्रेम किया, ये हमारा आनंद It है। is more than King Ahasuerus choosing an ordinary girl Esther. और एस्टेर राजा ने एक साधारण सी लड़की एस्टेर को चुना, उससे बड़ा आनंद की बात Never है। expected. उसने कभी उम्मीद नहीं She is की। an orphan. वो तो अनाथ लड़की She is थी, a poor girl. ये गरीब लड़की थी, She is not having any ornaments. उसके पास कोई गहने नहीं थे, Very simple girl. बड़ी साधारण सी लड़की थी। But पर King Ahasuerus loved Esther. ऐश्वर्योस राजा ने उससे प्रेम किया। एस्टेर से। Lord loving you and me is more than that. परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया वो उससे भी बड़ा है। What is there in you? What is there in me? आपके और मेरे में क्या है? क्या है? कम से कम हाँ हमारा अश्विनी भाई थोड़ा वाइट है, लंबा है, मैं क्या है? हाँ, हाँ, नहीं बोलेंगे। हाँ, हाँ। भाई अपना सौंदर्य के बारे में नहीं बोलते। Okay. Now, what is there in you and me? आपके और मेरे में क्या खूबी है? We are sinners. हम तो पापी हैं, God is a holy God. और परमेश्वर तो पवित्र परमेश्वर। What is our name? हमारा नाम क्या है? Isaiah 1:4 says, "You are a sinful nation." यशायाह 1:4 में कहता है, तुम तो पापी देश हो, You are a sinful nation. पापी देश हो। But today, what God is telling? पर परमेश्वर आज हमें क्या कह रहा है? As per 1 Peter 2:9, पहला पत्रस 2:9 के अनुसार, you are not sinful nation. You are a holy nation. तुम पापी देश नहीं, तुम एक पवित्र समाज हो। Yeah, there are 4 names God is giving there. परमेश्वर 4 नाम वहाँ पे दे रहा You है। are a chosen generation. तुम चुना हुआ, You are a royal priesthood. एक राजपत्री You are a holy nation. अलग एक पवित्र देश हो।
and you are a peculiar people. और एक चुने अलग किए हुए लोग हो। 4 names, 4 नाम दिए हैं, wonderful names. अद्भुत नाम है। So brothers and sisters, इसलिए प्रिय भाई बहनों, yeah, wonderful. What is there in you and what is there in me? आप में और मेरे में क्या खूबी है? He has created you and me. उसने आपको और मुझे बनाया है। Yesterday we have seen how much love He has shown at the time of creation. और हमने देखा था कितना प्रेम परमेश्वर ने सृष्टि के समय दिखाया। Everything in the world He has created by the power of His word. सब कुछ उसने सृष्टि में अपने वचन की सामर्थ्य से बनाया। But when it came to you and me, He has taken personal interest in creating, in designing you and me to give us you and me a shape. जब हमें बनाने की बारी आई, परमेश्वर ने अपना खुद का ध्यान दे के हमें बनाया। And He has given His own image to us. हमें अपना स्वरूप दे दिया। Not only that, और ना केवल He ये, has given His own life for us when you and I have become sinners. जब पापी बन गए उसने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। He is our creator. वो हमारा सृष्टि करता है। Son of God loved me and gave Himself for me. Galatians 2:20. गलातियों 2:20 परमेश्वर के पुत्र ने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। Not only that, ना केवल ये, why we must be joyful about that God. हमें उस प्रेमी परमेश्वर के लिए क्यों आनंदित Not होना? only He has chosen us out of the crores of the people in this world. इस संसार के करोड़ों लोगों में से उसने हमें ना केवल चुन लिया, Though we are not having any qualification. जब में हमारे अंदर कोई खूबी भी नहीं थी, Though there is no beauty in us. जब हमारे अंदर कोई सुंदरता नहीं थी। If you see the beauty of Lord Jesus Christ, अगर प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता को we देखें, can read in the Bible in 5:10 of Song of Solomon, He is altogether lovely. और शेष गीत में 5:10 में हम पढ़ते हैं वो सबसे सुंदर है। There is no spot in Him. उसमें कोई दाग झुर्री नहीं है। Such a spotless, such a sinless Son of God loved you and me. ऐसा पवित्र और निर्दोष परमेश्वर उसने आपसे और मुझसे प्रेम किया And He has chosen you and me. और आपको और मुझे चुन लिया। What a wonderful thing it is. कितनी अद्भुत बात है। Not only He created us, ना केवल उसने हमारी सृष्टि करी, secondly, दूसरी बात He redeemed us. उसने हमें छुड़ा लिया। That is very important. वो बहुत महत्वपूर्ण बात Today है। many people, all the people are created by God, आज बहुत सारे लोगों को मनुष्य परमेश्वर ने but all बनाया, are not redeemed by पर God. सब परमेश्वर के छुड़ाए हुए नहीं है। But you and I, पर आप और मैं redeemed by God. परमेश्वर के छुड़ाए हुए The हैं। salvation what God has given to you and me, it is not an ordinary salvation. ये उद्धार जो परमेश्वर ने आपको मुझे दिया, ये कोई साधारण उद्धार नहीं है। Apostle Paul, while writing to Hebrews, he writes, it is a great salvation. और इब्रानियों को लिखते हुए पौलुस लिखता है कि ये उद्धार महान उद्धार है। It is not an ordinary salvation. ये साधारण उद्धार नहीं है। Just asking for forgiveness, being saved, that is not the end of it. और माफी मांग लेना, उद्धार पा लेना, ये इसका अंत नहीं है। Salvation is a big pack. That's why Paul is writing it is a great salvation. Package. अच्छा, बड़ा पैकेट है, इसलिए वो कह रहा है कि ये उद्धार बड़ा उद्धार है। The moment when you confess your sins, जिस क्षण हम अपने पापों को मान लेते हैं, not simply you are forgiven. ना केवल हम साधारण रीति से माफ किए There जाते are हैं, so many things that have taken place at that उसके time. साथ साथ बहुत सारी बातें और भी होती हैं। The moment when you confess your sins, जिस क्षण आप अपने पापों को मानते हैं, you are forgiven. आपका उद्धार, आप माफ हो जाते हैं, You are washed by the blood of Christ. आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल जाते You हैं, are made a son or daughter of God. आप परमेश्वर के पुत्र पुत्री बन जाते Your हैं, name is written in the Lamb's book of life. आपका नाम जीवन की पुस्तक में मेमने की You पुस्तक are में लिखा made जाता the है, inheritor of the inheritance of heir of the inheritance of the saints. और संतों की जो मिरास है उसके हकदार आप बन जाते हैं, And the angels became your servants. और स्वर्गदूत आपके सेवक बन जाते Not हैं। one thing or two things. तो ये एक दो बात नहीं है। Simply sit after the meetings after these 3 or 4 days 3-4 ये जो सभा खत्म हो जाएगी उसके बाद बैठिएगा and sit leisurely. और ध्यान से अब फुर्सत से बैठिए, How many things have happened at the time when you confessed your sins? और इसको ध्यान दीजिए कि क्या क्या बातें हुई हैं जब आपका उद्धार हुआ। One day I sat and wrote. भाई एक दिन बैठ के उन्होंने लिखना शुरू किया, Nearly 55 and 60 things I have written from the Bible. करीब 55-60 बातें बाइबल में से लिखी भाई ने। So many things have taken place. इतनी सारी चीजें एक साथ हुई हैं। In one meeting, एक सभा में I told that ऐसा बताया 55 to 60 things have happened when I confessed my sins. कि मैंने जब उद्धार पाया, अपने पापों को माना, 55 से 60 बातें That's हुई। why God is telling it is a great salvation. It is not an ordinary salvation. इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि इसको कोई साधारण उद्धार नहीं है।
महान उद्धार है। When God is calling it great, truly it is great. जब परमेश्वर उसको महान कह रहे हैं तो वास्तव में महान है। After hearing that message, उस संदेश को सुनने के बाद one young girl went and she started writing. एक लड़की बाहर गई और उसने लिखना शुरू किया How many things have happened? कि मेरे उद्धार में क्या क्या बातें She हुई। knew the Bible so much. उसने बाइबल को अच्छे से पढ़ा She था knew the Bible better than me. और भाई से भी अच्छे जानती थी। So she wrote. उसने लिखा And after 2 days she came. और 2 दिन के बाद वो भाई के पास आई। Uncle, do you know what has happened? कि भाई अंकल आप जानते क्या हुआ है? I too wrote what has happened at the time of my salvation. मेरे उद्धार के समय क्या हुआ मैंने भी लिखा। Oh, then I asked her. और फिर भाई ने उससे How पूछा many you could write? कितनी लिख पाई तू? So far I have written 100, uncle. वो कहती 112 मैंने अभी तक लिख दी है। Century मारे. सेंचुरी मार दी है। 100 things. 100 बातें It is a great salvation. महान उद्धार है। Many people they do not know. That's why they take light of salvation. लोग जानते नहीं है इसलिए इसको साधारण रीति से लेते हैं। The salvation is a great salvation. ये उद्धार महान उद्धार He है। has delivered us. He has redeemed us from so many things. उसने हमें अलग किया और हमारे को इतनी चीजों से अलगाव दे दिया। I want to tell you at least 7 things from the word of God because of the blood of Lord Jesus Christ from which we are delivered. और प्रभु यीशु मसीह के लोग के बारे में 7 बातें बताएंगे जिसके द्वारा से हम अलग किए गए हैं, छुड़ाए गए हैं। Number 1. पहली बात Galatians 1:4. फिलिप्पियों पहला अध्याय उसकी 4th आयत। Galatians chapter 1 verse 4 पढ़िए. फिलिप्पियों 1:4। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से ये छुड़ाए। वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। So he has delivered us from the present evil world. इसी वर्तमान बुरे संसार से हमें छुड़ा दिया। The day when you are saved, जिस दिन हमारा उद्धार हुआ, that day when you are redeemed, जिस दिन हम छुड़ाए गए, what has happened? क्या हुआ? You are delivered from the present evil world. इस वर्तमान बुरे संसार से आप छुड़ा लिए गए। All around you is evil. You are seeing it. आप अपने आंखों से देख रहे हैं, आपके चारों तरफ बुराई भरी हुई The है। world around you is filled with so much evil. इस संसार में चारों तरफ बड़ी बुराई भरी हुई है। But the day when you are born again, और जिस दिन आपका नया जन्म हुआ, first of all, what is there in the world? इस संसार में है क्या? Yeah, so John is writing very clearly. We all know those verses, chapter 2, 1 John, verses 15 to 17. और दूसरी बात First John, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 2 से दूसरा अध्याय, दूसरा अध्याय 15 से 17 तक. 15 से 17 तक। So what are there in this world? इस संसार में क्या क्या There है? are only 3 things. 3 बातें हैं। Yeah, the lust of eyes, आंखों की अभिलाषा, and the lust of flesh, शरीर की अभिलाषा and the pride of life. और जीविका का घमंड। So the day when you are born again, God has delivered you from the evil world means God has delivered you from all these 3 things. और इसका मतलब जब आपका उद्धार हुआ तो परमेश्वर ने आपको इस बुरे संसार से इन तीनों चीजों से छुड़ा लिया। Lust of eyes you can see everywhere. आंखों की अभिलाषा आप हर जगह देख सकते हैं। Lust of eyes started in the Garden of Eden when Eve saw the forbidden fruit. और ये अदन की वाटिका से ही शुरू हो गया। ये आंखों की अभिलाषा जब हवा ने उस फल को देखा, Oh, when she saw the fruit, जब उसने फल को देखा, it was good to her eyes. उसकी देखने में सुंदर लगा। The lust of the eyes started from the Garden of Eden. आंखों की अभिलाषा वो उस अदन की वाटिका से शुरू हो गई। What Achan says? अब्राहम क्या कहता है? What Achan? आकान क्या कहता I है? have seen in Joshua 7th chapter. यहोशू के 7वें अध्याय में, Yeah, see, when I have seen that golden rod there, जब मैंने वो सोने की छड़ को वहां देखा, I have seen it. मैंने देखा जब The उसको, eyes. उसकी आंखें आ In the गई। life of Samson, सैमसन के जीवन I में have seen that girl. मैंने उस लड़की को देखा Oh, है। I have seen Delilah. मैंने दलाइला को I देखा have है। seen a harlot in Gaza. मैंने गाजा में एक वेश्या को I देखा have है। seen a woman in Timnah. मैंने तिम्ना में एक स्त्री को देखा है। Seen. देखना देखना देखना। Lord's wife saw behind. दूध की पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा, Eve saw. हवा ने देखा, Lord's wife saw. लौत की पत्नी ने देखा, Achan saw. आकान ने देखा, And you see, Samson saw. शमसून ने देखा। Yeah, the lust of eyes is there in the ये world. आंखों के विलासा संसार में है। All these things led them to death. और ये सब बातें उनको मृत्यु के पास ले गई। Eve brought death. हवा मृत्यु लेके आई। Achan died because of the lust of his eyes. आकान अपनी आंखों के विलासा के कारण मारा गया। Very pathetic end of Samson because of the lust of his अपनी eyes. आंखों के विलासा के कारण शमसून का बड़ा दुखद अंत हुआ। Lord's wife became a pillar of salt. She died there just because of the lust of अपनी eyes. आंखों के अभिलाषा के कारण से लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई। Yeah, what is the result of this lust of eyes? इस आंखों के अभिलाषा का क्या परिणाम It है? is death only. मृत्यु है। But when you are saved, पर जब आप बच जाते you हैं, are delivered
from the lust of the eyes. आप आंखों के विलासा की से बच जाते हैं। Not only that, ना केवल the ये, lust of flesh. जो शरीर का अभिलाषा है। Especially we can see that in the lives of Israelites. और हम इस्राएलियों के जीवन में देखते हैं, They came out of Egypt. वो मिस्र से निकल आए, But in the wilderness what they are telling? और मिस्र बयावन में क्या अरे है? कैसा तरह बच्चियां उधर खाते थे। और वहाँ तो बड़ा अच्छा मच्छी खाते थे। And what we were eating, lust of flesh. वो शरीर की जो अभिलाषा है। Sugar patients are there. शुगर के मरीज भी हैं, हाँ, doctor says very clearly, और डॉक्टर बड़ी सफाई से कहता don't है eat any sweet. मिठाई मत खाना, But they will be searching for sweets. वो मिठाई ढूंढते रहते हैं। Why? क्यों? They cannot control the lust of their वो flesh. शरीर की जो अभिलाषा है उसको रोक नहीं पाते, अरे suppose you don't eat this means they will be after that only. और उनको मना करो वो उसी मिठाई के पीछे लगे रहेंगे। Why? क्यों? The lust of flesh. शरीर की The Israelites in the wilderness, जो ये मिस्री जो इजरायली जो बयाबान में थे, always they are talking about the food they ate in Egypt. जो मिस्र में भोजन खाते थे उसी की बात करते रहे। What is the result? परिणाम क्या हुआ? All those people who are more than 20 years of age when they came out of Egypt, all they died in the wilderness except those two people, Joshua and Caleb. जितने भी लोग मिस्र से छूट के आए थे 20 साल की उम्र से ऊपर के, वो सब के सब खत्म हो गए, दो को छोड़ के, जोशुआ और कालेब को। Sad to say, even Moses also died in the wilderness. बड़ी दुख की बात है, मूसा भी बयाबान में मर गए, All the people, सब मर गए। lust of flesh. शरीर के अभिलाषा। How many times they murmured against कितनी God? बार उन्होंने परमेश्वर के विरोध कुड़कुड़ाए। In the book of Numbers, गिनती की पुस्तक में somebody counted, I have not counted, somebody counted and he said, 7 times they murmured. तो किसी कईयों ने गिनती करी, कई बोलते हैं कि 7 दफे उन्होंने खूबे कुड़कुड़ाए। So that's why it is known as not only the book of Numbers, it is the book of murmurings. और ना केवल गिनती की पुस्तक है, पर ये कुड़कुड़ाने की पुस्तक भी है। Yeah, in Telugu, సంఖ్యాకాండం కాదు, సొనుగుల కాండం అది. So full of murmuring. और वो कुड़कुड़ाने से भरी हुई है। They died. सब मर गए। But the day when you are born again, और जिस दिन आपका नया जन्म हो what the जाता Lord है, has done, परमेश्वर ने क्या He किया? has not only delivered you from the lust of eyes, and from the lust of flesh also. और ना केवल आंखों के विलासे से, शरीर के विलासे से भी आपको छुड़ा दिया। And thirdly, और तीसरी the बात, pride of life और जीविका का that is घमंड there in the world. ये संसार में John है। is writing so clearly, 3 things are there in this world. उन्होंने बड़ी सफाई से लिख रही है, 3 चीजें संसार में है। Pride of life. जीविका का घमंड। Today how much pride is there among human beings? आज मनुष्यों में कितना घमंड है। Suppose if you look like that, अगर आप ऐसा देखते हैं, what the other person say? दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा? क्या देख रहे हो? क्या देख रहा है यार? क्या है देखने का कुछ नहीं। देखने में है क्या? But क्या देख रहे हैं? फिर भी कहेगा क्या देख रहा है मुझमें? What pride in the heart. क्योंकि घमंड से भरा हुआ है। But the day when you are born again, और जब आपका नया जन्म होता God है, has delivered you from the evil world. परमेश्वर ने आपको इस दुष्ट संसार से छुड़ा दिया He है। redeemed you from the evil world. इस दुष्ट संसार से आपको छुड़ा दिया। Not only evil world, ना केवल दुष्ट संसार से, the second thing from which He has delivered. और दूसरी चीज जिससे आपको उसने छुड़ा दिया। Why we must be joyful because of our God? और क्यों हमें अपने परमेश्वर के लिए आनंदित होना है? He is our Creator. हमारा सृष्टि करता He है। loved us and He has chosen us before the foundation of the world. उसने हमसे प्रेम किया, जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। Secondly, He is our Redeemer. वो हमारा छुड़ाने वाला है। So दूसरी from बात, what He has redeemed us? उसने हमें किस चीज से हमें छुड़ा So दिया? the first thing we have seen from the lust of the world, from those 3 things. और पहले हमने देखा है वो आंखों की विलासा शरीर के, ये 3 बातें हमने देखी। That is the from the evil world. ये दुष्ट वर्तमान संसार And से छुड़ा दिया। secondly, दूसरी बात, He has redeemed us from the deeds of unrighteousness. Titus 2:14. तीतुस 2:14 के अनुसार इस जो पाप के कामों से छुड़ा दिया। So Titus तीतुस chapter 2 दूसरा अध्याय verse 14. 14 आयत पढ़ दीजिए। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा दे, हर प्रकार के अधर्म के अधर्म से अधर्म से छुड़ाए। छुड़ा ले, to redeem us from the deeds of unrighteousness. He offered Himself. हमारे को उस अधर्म के कामों से छुड़ाने के लिए उसने हमें बचा लिया। There are so many deeds of unrighteousness in this world. इस धर्म के बहुत सारे काम है इस संसार में। When somebody has committed some injustice to some other person, और किसी ने अगर किसी के विरुद्ध कोई पाप किया है, then immediately we will tell, तो हम अचानक से बोलते हैं you should not have done like कि that. तुझे ऐसा नहीं करना Oh, चाहिए he था, has harmed that person. कि तूने इस व्यक्ति को There are नुकसान so पहुंचाया है। many deeds of unrighteousness there are there in this world. इस संसार में अधर्म के बहुत से काम हैं। Suppose he is having a wonderful white shirt. मानिए मेरे पास एक बड़ी सुंदर सफेद शर्ट है,
I also can purchase a white shirt, isn't it? भाई भी खरीद सकते हैं अच्छी शर्ट है, But I will not purchase. और खरीदेंगे नहीं, But by looking at that shirt, और दूसरे की कमीज को देखते रहेंगे we will get paralysis. और देख के हमें उसको लकवा मारने लगेगा, Ah, paralysis आता. और गर्दन ऐसी हो जाएगी, मुंह टेढ़ा हो जाएगा। Why paralysis? क्यों वो पैर में लकवा मार रहा है You also can purchase a आप भी white खरीद shirt. लीजिए, क्यों मुंह बना रहे हैं? What is wrong in that? इसमें क्या बुराई है? Some sister comes with a nice dress. अगर कोई बहन बड़ी अच्छी कपड़ा पहन के आ जाती है, That's मुंह टेढ़ा हो जाता why? है। क्यों? Why this paralysis? ये लकवा क्यों मार रहा है मुंह You को? also can purchase. What is wrong in it? आप भी खरीद लीजिए, क्या बुराई है इसमें? God has given that woman a beautiful dress. Okay, be happy. उस स्त्री को परमेश्वर ने अच्छा वस्त्र दिया, आप खुश रहे उसमें, Immediately some mudslinging will start. और एकदम से उस पे बुराई करना शुरू कर देंगे। पैसे किधर से लाए हो मालूम? देखो तो कहाँ से पैसे ले ओ, आएंगे, ये कैसा महंगा है, कहाँ से खरीद लिया मालूम? कैसे खरीद लिया पता है? सब all deeds of unrighteous. ये अधर्म के काम है, Slandering the people, talking ill about other people. दूसरों की बुराई करना, उनके पीछे से उनके बारे में बुरा बोलना। Some people are there. कई लोग ऐसे हैं, Oh, when two people are together, they will be talking about the third person who is not there. और दो व्यक्ति बैठ के तीसरा व्यक्ति जो वहां नहीं है उसकी बात करते अब हैं, वो तीसरा व्यक्ति आए तो तीनों मिलकर fourth person. और वो तीसरा अगर वहां गया तो चौथे की बात शुरू कर देंगे। Why all this thing? ऐसा क्यों करते हैं? Spend your time in worshiping the Lord, reading the word of God, do some good thing. If you can't do some good thing, happily sleep. तो आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं और खुश रहें, और अगर नहीं आप समय बिता पा रहे तो आप सो जाएं। थोड़े लोग कहीं मीटिंग में भी सो जाते, बहुत अच्छा। कुछ लोग तो सभा में भी सो जाते हैं। हाँ, blessed people. Some people foam bed पे भी नींद नहीं आता। इधर आई तो बैठना है, कुछ भी नहीं है। कई लोग को बड़े गद्दों पे भी नींद नहीं आती, यहाँ बैठे बैठे नींद आ जाती है। So deeds of और unrighteous. ये अधर्म के काम। Today we will not talk bad against anybody. हम किसी के बारे में आप बुराई नहीं If करेंगे। somebody is blessed with some car, for example, किसी को परमेश्वर ने कार का काम दिया some है good job, या अच्छी नौकरी दी है, we also will be happy. हम भी खुश होंगे। Oh Lord, we thank you so much because you have given them a car. अब वो हम धन्यवाद देते हैं आपको, धन्यवाद आपने उसको अच्छी कार दी। So we will pray for others also. और हम दूसरों के लिए प्रार्थना भी करेंगे, We will not have anything against anybody. Only we will love people. और हम किसी के विरोध में कुछ नहीं कहेंगे, हम उनसे प्रेम ही करेंगे। Today I am telling very openly. आपको बड़े खुले तरह से बता I am दें, not having anything against anybody. किसी के विरोध में कोई बात नहीं है Why? मेरे दिल में। क्यों? If I have anything against anybody in my heart, that will be a cancer to my heart. It will kill me, not the other person. कि अगर मेरे जीवन में मैं किसी के बारे में बुरा सोच रहा हूँ, मेरे हृदय में उसके लिए बुराई है, वो मुझे ही मारेगा, मेरे लिए कैंसर की तरह काम करेगा वो। So it will not harm the other person. It will kill me. उसको नहीं कोई नुकसान होगा, मुझे ही मार देगा। Your anger, your jealousy, your envy, they will kill you only, not the other person. Remember that. आपकी जलन, आपका जो कुड़कुड़ाहट है, दूसरे के बारे में घृणा है, वो उसको कोई नुकसान नहीं होगा, आप ही उससे नुकसान उठाएंगे, मर जाएंगे। But when we are born again, पर जब हमारा नया जन्म हो the जाता है, second thing is God has delivered us from the deeds of unrighteousness. दूसरी बात परमेश्वर ने हमें अधर्म के कामों से आजादी दे दी। We are not having any link with the deeds of unrighteousness. अधर्म के कामों के साथ हमारा कोई जोड़ लगाव नहीं है। Not only that. ना केवल ये, Thirdly, तीसरी बात, from what He has redeemed और us. उसने हमें किसी से छुड़ाया, He has redeemed us from the traditions of the forefathers. बाप दादाओं की जो विधियां थी उससे छुड़ा दिया। 1 Peter 1:18. पहला पत्रस 1:18, 1 Peter 1:18. पहला पत्रस 1:18। क्योंकि तुम तो जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन हाँ। जो बाप दादाओं से चला आता है, हाँ। उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। So in the beginning itself it is written, we are delivered from the traditions of the forefathers. बाप दादाओं से चलाने वाली चीजों से, पुरखाओं की चीजों से हमें छुड़ा दिया। Before we were born again, इससे पहले हमारा नया जन्म हुआ, there were some traditions were there in our lives. हमारे जीवन में कुछ ऐसी विधियां थी। For example, उदाहरण के लिए, some people today they will talk about good day and bad day. कुछ लोग आज बात करेंगे, आज भला दिन है, आज बुरा दिन है। For us there is no good day, there is no bad day. Every day is a good day. पर हमारे लिए कोई बुरा दिन भला दिन नहीं, सारे दिन भले हैं। Isn't it?
है कि नहीं? But from the forefathers, some tradition is there. और पुरखाओं की विधि को एक नियम चला आ रहा है पुराना What is good day? कि भला दिन What क्या is bad है कि day? बुरा दिन कौन Or सा है। sometimes when they are fixing the dates of their marriages. कई बार जब शादी की डेट फिक्स कर रहे होते Now हैं before coming to the pastor, पास्टर के पास आने से oh, पहले they will go somewhere and they will say, oh, this is good day, and they will finalize, and they will come to the भाई बहुत प्रार्थना करें ये थाली वो किसी के पास जाएंगे बताएं भाई जी बताओ कौन सा दिन शुभ रहेगा वो निकाल के लाएंगे फिर पास्टर के पास बोलेंगे हमने बड़ी प्रार्थना करी और ये दिन फिक्स सिस्टर भी फास्टिंग और प्रेयर सिस्टर ने भी बड़ी प्रार्थना करी उपवास के साथ और ये दिन निर्धारित किया बट एक्चुअली वेयर दे हैव गॉन और वास्तव में गए कहाँ थे वो क्या शुभ दिन क्या है वो क्या है ये देखने के लिए वो जो जोशी के पास गए बताने के लिए कौन सा शुभ दिन है ये पास्टर क्या करते हैं पास्टर क्या करेगा हाँ प्रभु प्रार्थना करने के बाद आप दिखाया करते हाँ, प्रभु आप बताना आपने प्रार्थना करी लोगों ने आपने दिन दिखाया साधना करना शुरू कर तो ये भी प्रार्थना शुरू करेगा वी आर डिलीवर्ड फ्रॉम परमेश्वर ने हमारे को इन चीजों से अलग कर एवरी दिया। डे इज ए गुड डे फॉर अस हर दिन हमारे लिए भला है Yeah, these are the traditions of the forefathers. ये बाप दादों की विधियां थी Not only that, ना केवल ये। while constructing some houses, people go for vastu. और जब घर बनाते हैं कुछ लोग वास्तु शास्त्र के पास चले जाते हैं See, what should be the size? कि क्या आकार कितना बड़ा होना In चाहिए which corner, what should be there? किस किनारे पे क्या चीज बनानी है Bedroom on which side, or bathroom on which side, or well on which side? और बाथरूम किधर बनाए किचन किधर बनाए बाथरूम किधर बनाए अरे God has given you 100 yards building according to your convenience. अपनी सुविधा के अनुसार जो प्रभु ने जगह दी उसमें बनाए But so what people will do? तो लोग क्या करेंगे They will go to this vastu. ये वास्तु वाले के पास This is जाएंगे a tradition from the forefathers. ये बाप दादों की विधियों से चली आ रही Alright, बात some है people कुछ लोग they will go to palmistry. वो हाथ दिखाने के पास जाते हैं हाँ ज्योतिषी के पास हाँ ये देखो ये लाइन कैसा है ये लाइन कैसा है ये लाइन कहाँ जा रही कैसी अरे है देखने वाला उनका लाइन ठीक नहीं है इसलिए वो भाई अगर उसकी लाइन ठीक होती तो वो ये काम थोड़ी कर रहा था एक तोता को देख उधर पे तो तेरे को लेके बैठो तोता का लाइन भी ठीक नहीं उनका विंग्स ब्रेक कर दिए तो देखिए खुद किस्मत खराब है उसके कम तोड़ दिए बेचारे now what they will tell अब वो क्या कहेगा जोशी some people numerology कुछ लोग अंक गणित का जो I बताते हैं am purchasing a car total must be 9 only कि मैं जो कार खरीद रहा हूँ वो 9 होनी चाहिए हाँ। 9 गिनती में होनी चाहिए some fancy number कोई अच्छा सा नंबर होना चाहिए ये नंबर है तो अच्छा रहता कोई ना कोई होना तो कार का अगर ये नंबर मिलेगा तो ज्यादा शुभ रहेगा पर any number no number also okay हमारे लिए नंबर मिले ना मिले जो भी नंबर है वो सब सही है all these things are traditions from the forefathers ये सब बाप दादाओं की विधियों से चली हुई बातें हैं all these are known as Egyptian practices और ये सब मिस्र की कला मानी गई हैं we are delivered from them परमेश्वर ने इसे अलग कर when दिया you छुड़ा came दिया under the blood of Lord Jesus जब Christ प्रभु यीशु मसीह के लोग के दिन आ गए every day is a good day हर दिन एक अच्छा दिन बन गया every plot is a good plot हर जमीन जो है अच्छी जमीन बन गई yes every hand is a good hand only हर हाथ अच्छा हाथ बन गया yeah brothers and sisters इसलिए भाई बहनों thirdly he has delivered us he has redeemed us from the traditions of the forefathers और तीसरी बात परमेश्वर ने हमें बाप दादाओं की विधियों से अलग कर दिया and fourthly चौथी बात he has delivered us from the curse of the law हमें नियम के अनुसार जो श्राप था उससे हमें मुक्त कर दिया Galatians chapter 3 गलातियों तीसरा अध्याय verses 13 and 14 13 और 14 है 13 and 14 गलातियों 3 14 13 और 14 हाँ मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हाँ। हमें मोड़ लेकर व्यवस्था के श्राप से हाँ छुड़ाया। श्रापित बना व्यवस्था see the law became a curse for us ये व्यवस्था हमारे लिए श्राप बन गई why क्यों because in the law there is no room for forgiveness क्योंकि व्यवस्था में माफी नाम की कोई जगह नहीं है suppose if somebody has broken your hand you have to break the hand of the other person मान लीजिए- eye for eye tooth for tooth अगर हाथ तोड़ा है तो दूसरे का हाथ तोड़ दो जिसने आपकी आंख तोड़ी उसकी आंख तोड़ दो दांत तोड़ा दांत तोड़ दो so that is what the law says ये व्यवस्था कहती है in the law there is no forgiveness only punishment is there व्यवस्था में कोई माफी नहीं है सिर्फ सजा है but today that's why it became a curse इसलिए श्रापित बन गई if anybody committed some sin अगर किसी ने कोई पाप किया if anybody has robbed something मान लो किसी ने कुछ चुरा लिया he must be killed तो उसको मार he has देना committed adultery किसी ने व्यभिचार or किया some idolatry या मूर्ति पूजा he must की be killed उसको मार देना है
there is no room for forgiveness. माफी नाम की कोई चीज नहीं। Though you ask for forgiveness, you will not get forgiveness. अगर आप माफी मांगेंगे भी तो माफी नहीं मिलेगी। Why? क्यों? The law is there. क्योंकि व्यवस्था है। Today, when you came under the blood of the Lord, when He becomes your redeemer, you are redeemed from the curse of the law. पर जब प्रभु यीशु मसीह के लोग के दिन आगे आप छुड़ा लिए जाते हैं और आप व्यवस्था के शाप से भी मुक्त हो जाते हैं। Not only that, ना केवल if ये, anybody committed a small sin, मान ली किसी ने छोटा पाप he किया has to offer some sacrifice. और उसको एक बलिदान चढ़ाना He पड़ता has था। to bring some lamb, he has to bring some goat if he is a poor man, a pigeon. और अगर उसको एक मेमना, एक भेड़, अगर गरीब है तो कबूतर लेके आना पड़ता था। That was so burden. और बड़ी बड़ा बोझ था। The poor people may be there. गरीब लोग भी होते थे। From where they will get a lamb? एक मेमना कहाँ से लाएं? No, not only that. ना केवल ये, That lamb must be unspotted. There should not be any spot on it. उस मेमने में कोई नुक्स नहीं होना चाहिए। Very difficult to get it. बहुत मुश्किल होता था उसको खरीदना मिलना। आज You need not offer any sacrifice. आपको कोई बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। What a wonderful thing it is. कितनी अद्भुत बात है। Not only that. ना केवल There ये, is forgiveness with the Lord Jesus Christ, not punishment. प्रभु यीशु मसीह में माफी है, सजा नहीं। That's why law became a curse to the people. इसलिए व्यवस्था लोगों के लिए श्राप बन गई। It became burden to the people. लोगों के लिए बोझ बन गई। Because of law, people have to die. और व्यवस्था के कारण लोगों को मरना पड़ता था। People have to offer many sacrifices every year. हर साल लोगों को बहुत से बलिदान चढ़ाने Every पड़ते time when थे। they commit sin, they have to offer sacrifice. जब भी कोई पाप करते थे उन्हें बलिदान चढ़ाना पड़ता Suppose था। 10 sins they have committed, they have to offer 10 lambs. अगर 10 पाप किए तो 10 मेमने चढ़ाने What पड़ते a burden to them. ना बोझ होता था। Today, आज हमारे लिए oh, you and I are delivered from the curse of the law. हम इस व्यवस्था के श्राप से प्रभु ने छुड़ा Oh दिया। Lord, I am so joyful because of you. You redeemed me. प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ, आपने मुझे छुड़ा दिया। You redeemed me from the present evil world. मुझे इस वर्तमान दुष्ट संसार से छुड़ा You दिया। have redeemed me from the deeds of इस unrighteousness. अधर्म के कामों से मुझे छुड़ा You दिया। have redeemed me from the traditions of the मेरे forefathers. बाप दादों की पुरानी रीति रिवाज से छुड़ा You have दिया। redeemed me from the curse of the law. व्यवस्था के श्राप से मुझे छुड़ा दिया। And fifthly, और पांचवी बात, the Lord has delivered us from the powers of darkness. अंधकार की सामर्थ्य से हमें छुड़ा दिया। Colossians, कोलोसियों first chapter, पहला अध्याय verse 30. उसकी 13वीं आयत। Colossians 1:30. कोलोसियों 1:13। उसी ने हमें अंधकार के वर्ष से छुड़ाकर बस. See what he has done. उसने क्या किया है? He has delivered us from the powers of darkness. अंधकार के वंश से छुड़ा दिया। What does it mean? क्या मतलब है? From the powers of the demonic forces or occultism. इस संसार के जादू टोने और बुरी चीजों से, दुष्ट चीजों से छुड़ा दिया। Today many people they fear at the demons, और बहुत से लोग ये दुष्ट आत्माओं से डरते हैं, especially in North India. खासकर उत्तरी भारत में। Yeah, in almost every meeting some devil will come. हर सभा में कोई ना कोई दुष्ट आ जाता है। Meeting will be going on. सभा चल रही होगी, When the message is going और on, जब संदेश दिया जा रहा है, suddenly some will. Isn't it? So today और आज भी we are delivered from those powers. हम इन सामर्थ्यों से छूट चुके हैं। The blood of Lord Jesus Christ has delivered you and me, yeah, from the powers of darkness. और यीशु मसीह के लहू ने हमारे को इस अंधकार की सामर्थ्य से छुड़ा दिया। Though you are born again, हमारा नया जन्म हो गया। I ask you a direct question. Tell the truth. ये सच्ची बात बताना, आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं। Night time, रात में when you are sleeping, जब आप सोते हैं, the head only Bible. तकिए के किनारे सर के पास बाइबल रखते हैं। Why? क्यों रखते हैं? Are you loving Bible so much? आप बाइबल को क्या इतना प्यार करते हैं? ऑफिस में जाने के टाइम पे क्यों नहीं लेते? ऑफिस जाते हैं जब तो नहीं लेके जाते, सिटी बस में बैठते क्यों नहीं दे रहे? जब बस में बैठते हैं तब भी नहीं लेके खाली जाते, रात में. खाली रात में बाइबल रख के सोते हैं। क्यों? क्यों? रात में कौन रहता? रात में कौन? हाँ? हाँ? बुरे सपने आएंगे। हमारा रिश्तेदार बुरे सपने नहीं. रिश्तेदार Devil will come. शैतान आता है, दुष्ट That's why immediately keeping like this. इसकी छाती पे रख के सोते हैं, Because of the fear of demon. क्योंकि दुष्ट आत्माओं से डरते हैं। Remember, याद the रखिए, day when you are born again, on that day itself, God has delivered you from the powers of darkness. They cannot do anything to you. जिस दिन आपका उद्धार हुआ, उस दिन परमेश्वर ने आपको इस अंधकार की शक्तियों से अलग कर दिया। ये आपको कुछ नुकसान नहीं कर सकते। You need not keep the Bible at your head.
आपको सर के पास बाइबल रखने की कोई जरूरत नहीं You है। can keep in the shelf and you can sleep. आप उसको शेल्फ पे रख के आराम से सोइए, Because the Lord will be with क्योंकि you. परमेश्वर आपके साथ होगा। But this became a sentiment. और ये एक भावनात्मक चीज बन If गई। you are not born again, अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ if you are not washed by the blood of Christ, और आप प्रभु यीशु मसीह के रोज से नहीं धुले हैं, एक बाइबल नहीं, डजन बाइबल रखे तो भी ये डेविल नहीं डरता, अगर आप 12 बाइबल रख के सोएंगे तब भी वो शैतान नहीं डरेगा। सीधा आ जाता। हाँ भाई, क्यों? because you are not born again, क्योंकि आपका नया you जन्म, are not under the blood of the आप Lamb, प्रभु यीशु मसीह के लोग के अधीन you are नहीं not हैं, covered by the blood of the आप Lamb, प्रभु यीशु मसीह के लोग में ढके हुए नहीं हैं। and you are born again. और जब आपका नया जन्म हो Oh, जाता He है, redeemed you from the powers of आपको darkness. अंधकार की शक्तियों से छुड़ा दिया। Yeah, demons cannot do anything. ये दुष्ट आत्मा आपका कुछ नहीं कर सकते। Yeah, yesterday I was telling, कल भाई बता it रहे is थे, not because you are strong. ये नहीं कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, The one with you is very जो strong. आपके साथ है वो बहुत The one शक्तिशाली है, in you is very great. जो आपके अंदर है वो बहुत बड़ा है। Then demon cannot do anything. वो दुष्ट आत्मा आपको कुछ नहीं कर सकती। One born again girl was there, small girl, maybe some 10 years of age. एक छोटी लड़की थी, शायद 10 साल की, उसका नया जन्म हो गया था। Many times you must have heard this also. शायद आपने सुना भी होगा इसको पहले। One day, एक दिन the 10 years old girl was born again. उस 10 साल की लड़की का नया जन्म हो गया था। Lord Jesus Christ was there in her और heart. यीशु मसीह उसके हृदय में थे। One day, great man of God, D.L. Moody, एक दिन डीएल मूडी जो परमेश्वर के बड़े दास हैं, and she met the 10-year-old girl. वो उस लड़की से मिले And D.L. Moody doesn't know that she was born again. और वो नहीं जानते थे कि छोटी लड़की का नया जन्म हो गया। D.L. Moody is a great man of God. डीएल मूडी तो परमेश्वर के बड़े दास So थे। then what D.L. Moody asked? डीएल मूडी ने उससे क्या पूछा? ए बेटी, Suppose Satan comes and knocks the door of your heart, what you will do? कि अगर शैतान तेरे दिल के आके दरबार को खटखटाएगा तो तू क्या करेगी? Will you open to Satan? तू शैतान के लिए दरवाजा खोल देगी क्या? Then what she said? उसने क्या कहा? Yes, I will open my heart to Satan. हाँ, मैं अपना दिल शैतान के लिए खोल दूंगी। Then D.L. Moody said, फिर डीएल मूडी ने no, पूछा, no, you should never do like that. नहीं तुझे ऐसा नहीं करना Satan चाहिए। will spoil your life. शैतान तो तेरा जीवन खराब Satan करेगा, is a destroyer. वो तो नाश करने वाला You है। should never open your heart. तुझे अपने हृदय उसके लिए कभी नहीं खोलना। Then what she told? तो उसने क्या कहा? No, I will open. नहीं, मैं तो खोल दूंगी। I will open my मैं heart. अपना हृदय खोल दूंगी। Why you are telling like तू ऐसा क्यों that? कह रही है? बेटी ऐसा क्यों बोल रही है? Then what she said? उसने क्या कहा? I already gave my heart to Jesus. मैंने तो अपना हृदय पहले ही प्रभु यीशु मसीह को दे Who दिया। is there in my heart? वो तो पहले ही मेरे हृदय में है। कौन है मेरे हृदय में? Jesus is there. यीशु मसीह मेरे हृदय When में। I open my heart, जब मैं अपना हृदय खोलूंगी, whom Satan will see? शैतान किसको देखेगा? यीशु को यीशु मसीह। यीशु मसीह को देखेगा। बाद में आते तो आज नहीं, बाद में आऊंगा, वो भाग जाएगा, silently he will go away. चुपचाप चला जाएगा। Why? क्यों? Already Jesus is there. पहले ही प्रभु यीशु मसीह अंदर When है। that became a big lesson to D.L. Moody. और डीएल मूडी के लिए बड़ा सबक बन गया ये। So when God is there in your heart, जब प्रभु आपके हृदय में है, when you are redeemed by the blood of जब Christ, प्रभु यीशु मसीह के लहू से छुड़ा लिए गए when हैं, Lord Jesus Christ is there in your जब heart, प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में है, Satan may come and knock the door of your heart. शैतान आके खटखटाएगा आपके हृदय You can को। open your heart. आप हृदय खोल सकते हैं। Then what will happen? फिर क्या होगा? Satan will see Jesus in your heart. शैतान देखेगा यहाँ तो प्रभु यीशु मसीह पहले ही है, अरे बाद में आते ये रॉन्ग रूट में आए और चला जाएगा। हाँ चले जाए। He has delivered us from the powers of darkness. अंधकार की शक्तियों से हमें छुड़ा लिया। Now the occultism, the demons cannot do anything to you or to me. और अब ये दुष्ट आत्माएं, ये टोना टटका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। Brothers and sisters, प्रिय भाई बहनों, 5 things we have seen. 5 बातें हमने देखी। Number 1, पहली बात, why we should be joyful because of our God. हमें अपने परमेश्वर के लिए क्यों आनंदित होना है? Yesterday we have seen because He is our Creator, He loved us and He has chosen us. कल हमने देखा था हमारा सृष्टिकर्ता, उसने हमें छुड़ाया, हमारे को उसने बनाया। And how we can be delightful in our Lord. और क्यों हम कैसे हम अपने परमेश्वर में आनंदित हो Not सकते हैं? only is our Creator, He is our Redeemer. ना केवल हमारे को बनाने वाला है, पर हमारे को छुड़ाने वाला He है। redeemed not only from our sins, ना केवल हमें पापों से छुड़ाया, He redeemed us from the present evil world, हमें वर्तमान संसार से छुड़ा दिया, from the deeds of unrighteousness, Titus 2:14, तीतुस 2:14 के अनुसार अधर्म के कामों से छुड़ा दिया, and from the traditions of the forefathers, हमें बाप दादाओं की जो रीति रिवाज है उससे and छुड़ा from the दिया, curse of the law, व्यवस्था के शराब से छुड़ा and दिया, also fifthly from the traditions of the forefathers. हमें बाप दादाओं की विधियों से छुड़ा दिया। Not only that, ना केवल ये, sixthly, छठी बात, He has delivered us from all the differences.
हमें सारे भेदभाव से छुड़ा दिया। Before we came to the Lord, इससे पहले प्रभु के पास आए, how many differences are there? कितने भेदभाव थे हमारे। I am rich, you are poor. मैं अमीर, तुम गरीब। I am North Indian, you are South Indian. मैं उत्तर भारत का, तुम दक्षिण I भारत के। am Hindi वाला, तुम Tamil वाला. तुम हिंदी वाले हो, तुम तमिल वाले हो। तुम आंध्रा वाला, तुम तेलंगाना तुम वाला. तेलंगाना वाला है, तुम तमिलनाडु आंध्रा का है। And also caste. और जाति, How many castes are there? कितनी जातियां। Oh, you are that caste and I am this caste. तो इस जाति का है, मैं फलानी You are जाति का हूं। educated and I am तू uneducated. अनपढ़ है, मैं पढ़ा लिखा हूँ। How many differences? कितने भेदभाव, How many differences? कितने अलग अलग चीजें। India is filled with all these differences. और भारत ऐसी सारी अलग अलग चीजों से Especially भरा the हुआ है। caste system is playing a very bad role. और जो जातिवाद तो बहुत ही बुरा कर रहा है हमारे देश में। But when we are born again, और जब हमारा नया जन्म होता when है, we are redeemed by the Lord, तो आज हम व्यवस्था से छूट जाते हैं। God has joined us to a new family. परमेश्वर ने हमारे एक नए परिवार में जोड़ दिया। In this family, इस परिवार there में is no rich, no poor, कोई अमीर गरीब नहीं है, no white, no black, कोई गोरा काला नहीं no है, educated nor कोई uneducated, पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं है, no caste कोई differences, जात का डिफरेंस, no nationality, no linguistic differences. कोई जात जगह का, कोई भाषा का भेदभाव नहीं है। One group decides. ये सब एक It समूह is बन a जाता new है। family. ये नया परिवार बन All जाता are है। children of God. सब परमेश्वर की All संतान are हैं। washed by the blood of सब Christ. प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए। What we are seeing in heaven, हम स्वर्ग में क्या देख रहे हैं? in the book of Revelation, प्रकाशित वाक्य पुस्तक, Revelation chapter 5, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय, verses 9 and 10. उसकी 9वीं और 10वीं There आयत। we are seeing a group. बाएं समूह को देख रहे हैं हम। That is the family of God. और परमेश्वर का एक परिवार What है। is the group? ये ग्रुप क्या कर In रहा that है? group, what type of people are इस there? ग्रुप में कैसे लोग हैं? वे एक नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा हर एक कुल और एक भाषा और लोग हाँ। और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। Yeah, this is a new group. ये नया समूह है। In this group there are no differences. इसमें कोई भेदभाव नहीं है। There is no caste difference. इसमें कोई जातिवाद का There is no rich भेदभाव or नहीं है। poor, educated or uneducated. इसमें पढ़े लिखे अनपढ़ में कोई भेदभाव नहीं है। By the blood of Lord Jesus Christ, He has removed all the differences. प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के कारण से इस सारे भेदों को अलग कर दिया। That's why whenever we meet, praise the Lord brother, praise the Lord sister. इसलिए जब मिलते हैं एक दूसरे को जय मसीह की भाई, जय मसीह की बहन कहते हैं। भाई बहन कहते हैं। What does it mean? इसका मतलब क्या है? Born of the same parents. एक ही माँ बाप से जन्मे हुए हैं, Same blood is flowing. एक ही खून बह रहा We है, are brothers and हम sisters. भाई बहन हैं। We will never call कैसा है रेडी भाई, कैसा है कमा भाई, कैसा है रिच भाई, कैसा है no, not like that. Just भाई. हम नाम ले लेके नहीं बोलते भाई कैसा है, तू कैसा है, हम सिर्फ बोलते हैं भाई कैसे। If you are still showing the differences, you are not fully enjoying the fruits of salvation. अगर आप अभी भी भेदभाव लेके चल रहे हैं तो उद्धार में पूरे आनंद को अपनी मतलब उसका आनंद नहीं ले रहे। Brothers and sisters. प्रिय भाई बहनों, Because God has removed those differences. Though you are in the north, you called me from south. Why? There is no north, there is no south. क्यों हमारे लोग घर भाई दक्षिण भारत से हैं, हम उत्तर भारत में, फिर भी हमने भाई को बुलाया क्योंकि हमारे में कोई भेदभाव नहीं है। He is white and I am black. भाई गोरे में काला हूँ, फिर भी कोई फर्क नहीं। इधर उधर हो गया। जो एक बन गया इधर उधर हो जाता। So there is no difference. इसलिए कोई फर्क नहीं है। So brothers and sisters, इसलिए प्रिय भाई बहनों, this is the power in the blood of the Lamb. ये प्रभु के लोगों में सामर्थ्य है। Nothing in this world is able to take away these differences. कोई भी संसार की चीज इस भेदभाव को अलग नहीं कर Go सकती। to any place. कहीं चले जाइए आप, People will ask you what is your caste. पूछेंगे लोग आपकी जाति क्या Even है in the caste, what is your subcaste? और जाति में भी कौन सी उससे What is your कौन से native गोत्र के हो, place? कौन से कहाँ से रहने वाले From हो, which country? किस देश से हो। Today it is not like that. आज ऐसा नहीं। When you see another child of God, जब परमेश्वर के दूसरे बच्चे को he देखते may be हैं, from Africa or Europe or Asia or America. आप हो चाहे अफ्रीका यूरोप कहीं का भी हो, सब भाई हैं। मेरा भाई. मेरा भाई, What a wonderful relation. कितना अद्भुत ये रिश्ता है। One family. एक परिवार। God has removed all the differences. He has redeemed us from all the differences as per Revelation 5, 9 and 10. प्रकाशित वाक्य 5, 9, 10 के अनुसार परमेश्वर ने सारे भेदभाव को अलग कर दिया। And seventhly and finally, और सातवीं और आखिरी बात, when He redeemed you and me, जब उसने आपको और मुझे छुड़ा लिया, there is a strange fear in this world. इस संसार में एक अजीब सा डर है। What is that fear? वो डर क्या है? The fear of death. मृत्यु का डर। Do you know one thing? आप क्या जानते हैं इस बात? What is the truth? सच्चाई क्या है?
Everybody who is born, he has to die. हर एक व्यक्ति जिसने जन्म लिया उसको मरना है। Whether you fear or not, you have to die. चाहे आप उससे डरे या ना डरे, आपको मरना तो है। Life is uncertain, death is certain. जीवन की कोई निश्चितता नहीं है, पर मृत्यु तो निश्चित है। You may be anybody. आपसे कोई भी चुनाव। Yesterday, Ratan Tata died. और कल जो रतन टाटा था वो भी Great man. बड़ा व्यक्ति था, महान व्यक्ति था, But he has to die. पर उसे मरना था। Even a poor man has to die. एक गरीब व्यक्ति को भी मरना Life था। is uncertain, death is certain. जीवन का कोई निश्चितता नहीं है, पर मृत्यु निश्चित है। Today or tomorrow, one day you have to die. एक न एक दिन आपको और मुझे मरना है। But there is a strange fear of death. अरे मैं मरेगा। फिर भी एक डर सबके मन में है, मरना चाहूँ, I may die. मरना चाहूँ। अरे you will die रे भाई। अरे मरना तो है ही भाई। Whether you fear or not, you are going to die. डरो चाहे ना डरो, मरना तो है। But Satan has kept this strange fear. पर शैतान ने अजीब सा डर हमारे हृदय में डाल रखा है। But when you are born again, और जब हमारा नया जन्म हो जाता when है, you are come under the blood, जब प्रभु के लोग के दिन आ जाते the हैं, Lord has delivered you from the fear of death परमेश्वर also. ने आपको इस मृत्यु के भय से भी अलग कर दिया। If death comes to your life, अगर ये मृत्यु आपके जीवन में आती है if the death comes and knocks the doors of your heart, और आपके हृदय को आके मृत्यु खटखटाने लगती है, what you will do? आप क्या करेंगे? You will stand with the garland. Come on, I want to die. आप माला लेके खड़े होंगे, आजा आजा, मैं मरना ही चाहता हूँ। Yeah, I am ready to मैं die. तो मरने के लिए तैयार हूँ। Anytime God can call. किसी भी समय प्रभु मुझे बुला सकते हैं। There is no fear of death. मृत्यु का कोई डर नहीं है। Hebrews chapter 2, इब्रानियों दूसरा अध्याय, Hebrews chapter 2, इब्रानियों दूसरा अध्याय, verses 14 and 15. उसकी 14वीं और 15वीं आयत। हाँ, इसलिए हाँ। जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, हाँ। ताकि मृत्यु के द्वारा हाँ। जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, हाँ। अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, हाँ। और जिसने मृत्यु के भय के मारे हाँ। जीवन भर दास्तव में फंसे थे, हाँ। उन्हें छुड़ा ले। So now from the fear of death also, we are ready. हम मृत्यु के भय से भी छूट गए हैं। Yes, you and I can shout with the Apostle Paul, "Oh death, where is thy sting? Oh grave, where is thy victory?" और हम भी पौलुस के साथ चला सकते हैं, मृत्यु तेरी सामर्थ का रही है, नरक कब्र तेरा डंक, मृत्यु तेरा डंक और कब्र तेरा सामर्थ कहाँ रही? When Lord Jesus Christ died and buried and rose again, He got victory on our behalf over the death, over the grave. प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और वो जीवित जय उठे, मृत्यु पर कब्र पे विजय प्राप्त करी। When Lord Jesus Christ died, जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए, you know what happened? क्या हुआ? 2 words I will tell. दो बातें आपको बताएंगे, दो आयत थी सिर्फ। Death died. मृत्यु मर गई, Death died. मृत्यु मर गई। Now death it is dead. It is dead. It cannot do anything. वो मर गई है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, Because we are in Lord Jesus क्योंकि Christ. हम प्रभु यीशु मसीह में The हैं। day when He rose again, we also are risen again. जिस दिन प्रभु यीशु जी उठे, हम भी जी उठे। So many things when He redeemed us. कितनी चीजें हुई जब प्रभु ने जब हमें छुड़ाया। That's why we must be joyful in the Lord. इसलिए हमें प्रभु में आनंदित रहना है। Delight thyself also in the Lord. अब प्रभु में आनंदित होते He is रहो। not only your creator, ना कि हमारा सृष्टि करता है, He is your redeemer. हमारा छुड़ाने वाला है। 7 things I told. आपको 7 बातें बताई। Quickly tell the 7 things. I will sit and you can stand. आप जल्दी से उसे बताएं 7 बातों को, फिर From what things He has redeemed us? किस किस 7 बातों से छुड़ाया। पहली बात बताएं Number one. जल्दी। Evil word. इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाया। And secondly, दूसरी बात, evil word, not only evil word, Galatians 1:4 reference to one. गलतियों 1:4 और उसका वो भी रेफरेंस ही बता दें। Secondly, दूसरी बात, deeds of unrighteousness. अधर्म के कामों से छुड़ा दिया। Titus 2:14. तीतुस 2:14। And thirdly, तीसरी बात, traditions of the forefathers 1 Peter 1:18. पहला पत्रस 1:18 बाप दादों की विधियों से छुड़ा दिया। And fourthly, चौथी बात, the curse of the law, Galatians chapter 3:13 and 14. गलतियों 3:13-14 व्यवस्था के श्राप से छुड़ा दिया। And fifthly, और पांचवी बात, powers of darkness, कार की सामर्थ से छुड़ा दिया। Colossians 1:13. कोलोसियों 1:13। And sixthly, छठी बात,
all the differences. सब भेदभाव से छुड़ा दिया। Revelation 5, 9 and 10. प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 9 और 10। And sixthly, छठी बात, from the fear of death, Hebrews 2, 14 and 15. इब्रानियों 2, 14, 15 मृत्यु के भय से छुड़ा That's दिया। why the salvation what God has given to you and to me is not an ordinary salvation. It is a great salvation. इसलिए जो उद्धार परमेश्वर ने हमें दिया है कोई साधारण उद्धार नहीं है, महान उद्धार है। Many times बहुत दफे है we tell that we are saved, but we won't enjoy this salvation. हम कहते तो हैं हमारा उद्धार हो गया, पर इस आनंद का, इस उद्धार का आनंद नहीं उठाते। Many times you do not know how many things are there in that क्योंकि हम salvation. जानते नहीं कि इस उद्धार में कितनी चीजें और जुड़ी हुई हैं। But God, when He redeemed us from all these things. पर क्यों परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, इन सब चीजों से उसने हमें छुड़ा दिया। That's why we have to delight ourselves also in the Lord. इसलिए हमारे प्रभु में आनंदित बने रहना है। Because of His creation, क्योंकि उसकी सृष्टि के कारण, because of His redemption, उसके उद्धार के कारण से let us try to enjoy the greatness of our salvation, at least from today. कम से कम आज से हम इस उद्धार के बड़े आनंद को, आज से हम उसका आनंद उठाना शुरू करते हैं। Let us pray. प्रार्थना करें। Thank you, brother.